اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی قائم ہے ما تعیش یا معیشت ما تقوم بالحیات، وہ چیز جس پر زندگی قائم ہے اس کو معیشت بولتے ہیں۔ تو ہم اور دیکھیے نکرہ رکھا ہے مولانا، کیا ہے نکرہ کی معرفہ؟ نکرہ میں کیا چیز پیدا ہوتی؟ وسعت، ہماگیری۔ تو بتا رہا ہے کہ بتاؤ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اس دھرتی پر ہم نے تم کو اقدار دیا اور پھر معیشت، خالی معیشت میں فراوانی بخشی، معیشت میں فراوانی بخش، صرف ایک لفظ نے فراوانی کا مفہوم پیدا کیا، یہ عربی زبان ہے۔ صرف کیا کہا؟ المائش نہیں کہا، المائش ہوتا تو محدود ہو جاتا، معرفہ ہو جاتا، مخصوص چیزیں ہو جاتی، محدود ہو جاتی، لیکن یہ کیا المائش، معائش نکرہ رکھا اور بالعموم، یعنی ایک دم عموم ہو گیا۔ نکرہ رکھنے کی وجہ سے عموم پیدا ہو گیا، ہر چیز کی ہم نے سہولتیں تم کو دے رکھی ہیں۔ وادی غیر ذی زرع، بتائیے وادی غیر ذی زرع، کوئی سامان راحت ہے؟ آپ سوچیے کوئی چیز وہاں پیدا ہوتی؟ کچھ نہیں کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا۔ تجارتی مرکز کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ حضرت ابراہیم کو بسایا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ان کو برکت عطا فرما، روزی عطا فرما۔ تو اس کی دعا ابراہیمی کے نتیجے ہم نے کافی فراوانی دی، معاش۔ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ فراوانی جو معیشت میں شکر، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پر، دی ہوئی دولت پر، دیے ہوئے اقدار پر تم شکر ادا نہیں کرتے۔ قلیلاً ما تشکرون، بالکل شکر نہیں ادا کرتے۔ سوچو کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تم کو تمکن بخشی، عزت دی، اقدار دیا۔ تم ذرا سوچ لو، یہ قریش کے علاوہ تم ذرا غور کرو اس پر، تمہارے علاوہ عربستان میں اور بھی قومیں آباد ہیں، 200 لوگ آباد ہیں۔ تم دیکھو دن دہاڑے لوٹ لیے جاتے ہیں، قبائل کے قبائل لوٹے جاتے ہیں، اور تم ہو کہ تم جنوب میں بھی سفر کرتے ہو اطمینان کے ساتھ، شمال میں چلے جاتے ہو، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچاتا۔ بتائیے لإِلاَفِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی سخاوت مہربانی ہے کہ قومیں تمہارے آس پاس کے لوٹ لی جاتی ہیں، اور تم کو یہ کعبے کے مجاور ہونے کی وجہ سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، مگر تم کو اقدار بخشا۔ اس کا تقاضا کیا تھا؟ ہم تم کو شکر، لیکن تم شکر بالکل نہیں ادا کر رہے، قلیلاً ما تشکرون۔ اب اس کے بعد یہ تمہید ہے، سمجھیے، اس کے بعد کہہ رہا ہے تم سوچو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، چلیے ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ دیکھو اللہ کے فیاض، دیکھو اس کا کرم، دیکھو کیا کیا تم پر اس نے کرم کی ہے، مہربانی کی ہے، دیکھ لو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے مولانا کیا کہ ابتدائی خاکہ بنی، کیا کیا ہے؟ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی۔ اور خلقہ کے اصل میں خاکہ بنانا، خلقہ کے معنی خاکہ بنا، ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، نقشہ بنایا، اور پھر اس نقشے کے مطابق ہم نے تمہاری صورت گری کی، نقشہ بنایا، یوں مخلوق ایسی نہیں ہے، بلکہ خاکہ بنایا باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد صورت گری کی۔ دیکھو تمہاری صورت گری کیسی صورت گری کی اس نے۔ اور سورہ آپ اس میں پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں کہ وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ صورت گئی رحم مادر میں کرتا ہے۔ دیکھو اس کی خالقیت، اس کی حکمت اور اس کی قدرت، دیکھیے کس انداز سے تم کو جو رحم مادر میں تم کو تمہاری صورت گری کی ہے۔ چلیے پھر کیا کہا؟ اس کی عظمت دیکھو، اس کا احسان دیکھو۔ پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اس آدم کی، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے البتہ ابلیس، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ پوچھا تجھے، یہاں نہیں ہے، ابا واستکبر وکان ہے، یہاں نہیں ہے وہ،
वो सूर्य बकरा में पढ़ अबा, अबा के माने बता, अबा माने अपनी बेइज्जती महसूस करके इनकार कर देना, अपनी बेइज्जती महसूस की, जिल्लत महसूस की, अबा वस्तकबर और तकब्बुर किया, बड़ाई के नशे में चूर हुआ और काफिर हो गया। तो यहाँ क्या है, सजदा नहीं किया। अब उसकी यहाँ क्या है, फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है मा मनअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक। चलिए, पूछा तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया। बस कीजिए, जरा इनका तर्जुमा पढ़िए आप, इलियास साहब। अल्लाह ताला ने फरमाया तू जो सजदा नहीं करता तुझको इससे कौन अमर माने हैं। तू सजदा नहीं करता। चलिए ठीक है। और चलिए साहब आसन बयान का तर्जुमा पढ़िए मौलाना शेख ताहिर साहब। मुदू साहब का है। ओहो, अल्लाह ने किस चीज़ ने रोका तुझको सजदा करने से जबकि हुक्म दिया था मैंने। बस बस किसने रोका सजदा? जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका। अब देख लीजिए, ये दोनों तर्जुमा एक है। ये दोनों बुजुर्ग तर्जुमा कर रहे हैं किस चीज़ का, माँ अन तस्जुदा का, अन तस्जुदा का तर्जुमा हो रहा है। मौदूद साहब का भी, मौलाना अमीन साहब का भी, और दूसरे लोगों का भी। आप समझ लीजिए, दूसरे लोगों का भी वही तर्जुमा है, लेकिन तो कुछ खिंचातानी की है। आप समझ लीजिए इसको। तुमको किस चीज़ ने रोका सजदा करने से? अन तस्जुदा नहीं, अल्लाह तस्जुदा है, ला लगा हुआ, ला लगा हुआ है। समझ गए कि नहीं आप? तो अब अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें, तुमको किस चीज़ ने रोका सजदा न करने से, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा किस चीज़ ने रोका तुमको सजदा न करने से, यानी तुमने सजदा क्यों किया, तुमको सजदा नहीं करना चाहिए था। ये मफहूम निकल रहा है ला की वजह से, यही तर्जुमा होगा ना। तुमको किस चीज़ ने रोका सजदा न करने से, यही ना होगा। अनमसदरिया लें, ला कमाए नहीं के। ये देखिए है टिपिकल बात, यही है भाई, समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग जाहिर है कि अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़, इसके उसलूब से नावाकिफ़ हैं, इसे थोड़ी, चूँकि उमूमन ये चीज़ पाई जा रही है तर्जुमे में, इसे थोड़ी सी वजाहत हम इसका करना चाहते हैं। देखिए, चूँकि ला नाफिया है, तो इस बुनियाद पर बेशतर मुफस्सिरीन ने इस ला को ज़ायद बना दिया है। ला क्या बना दिया? ज़ायद। इस ला को ज़ायद बनाकर तर्जुमा उसका नहीं किया है। मौलाना मौदूदी साहब ने भी ज़ायद बनाया और मौलाना अमीन हसन साहब ने भी ज़ायद बनाया, और बिलउमूम हमारे मुतरजिम ने उसको ज़ायद बना दिया। कुछ लोगों ने कुछ खींच तान कर, जैसा कि एक तर्जुमा पढ़ा था किसी ने, क्या है बोलिए? अल्लाह ने फरमाया जो सजदा नहीं करता तुझको इससे, जो सजदा नहीं करता, सजदा नहीं करता कि अनमसदरिया है, सजदा नहीं करता क्या? ला को इन्होंने सोचा कि ला को ले आए, लेकिन वो बात बनेगी नहीं। मुख्तसर ये कि इस तरह के जो उसलूब होते हैं, ला जब बीच में आता है कभी ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि ये जुमला तवील था, अरबी ज़ुबान उसलूब के मुताबिक उसको मुखफ़फ़ कर दिया, हल्का कर दिया। जुमला यूँ है, मा मनअका अन तस्जुद व अमरका अल्ला तस्जुद। किस चीज़ ने तुमको सजदा करने से रोका और किस चीज़ ने हुक्म दिया कि तू सजदा न करे। सजदा न करने किसने हुक्म दिया? मैंने तुम्हें हुक्म दिया सजदा करने का। तुमको किस चीज़ ने हुक्म दे दिया सजदा न करने का? कोई बात समझ में आ गई कि नहीं? थोड़ी सी ये अरबी उसलूब है, इस वजह थोड़ा सा, किस चीज़ ने तुमको रोका सजदा करने से और किस चीज़ ने हुक्म दिया तुमको सजदा न करने का। लंबा जुमला था, अरबी ज़ुबान के उसलूब के लिहाज से मुकाबिल को उसलूब हज़फ कर देते हैं। चलिए, क़ाल अना खैर मिन्हु, बोला मैं तुझसे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। ये बात है, मैं बेहतर हूँ उससे। क्यों बेहतर है? कि तूने मुझको आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से। लेकिन कहीं जवाब उसने नहीं दिया। ये जवाब नहीं दिया क्यों आग बेहतर है मिट्टी से। जवाब दिया खाई दावा है, सिर्फ दावा है, अना खैर, मैं उससे बेहतर हूँ। क्यों? तुमने मुझको मिट्टी से पैदा किया, मुझको आग से पैदा किया, उसको मिट्टी से, और मिट्टी से आग बेहतर होती है। दलील चाहिए थी, कोई दलील नहीं दी। चलिए, फरमाया अच्छा तो यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं है कि यहाँ बड़ाई का घमंड करे, निकल जा के दर हकीकत तू उन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। बस ठीक, फिर चलिए आगे पढ़ते रहिए। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे
फरमाया तुझे मोहलत है। बोला अच्छा, तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की घात में लगा रहूँगा, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से इनको घेरूंगा, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाए। बस यहाँ से जो मुश्रिकीन मक्का को समझाया जा रहा है इब्लीस के वाक़या को, किस बुनियाद पर? जब अल्लाह ने कहा कि मैं तुमको यहाँ से निकालना हूँ, निकल जाए यहाँ से, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमें मोहलत दे दे। मोहलत दे दी गई। फिर क्या कहा उसने? किस लिए मोहलत मांगी? बहकाने के लिए। बहकाने के लिए वो मांग रहा है। और क्या कहा? ताकि तू ना पाए इनको, क्या ना पाए? शुक्रगुजार। अब ये बताइए, ये 2-3 आयतों में जो है, ये आयतें क्यों सुनाई जा रही हैं मुश्रिकीन मक्का को? ये कुछ रब्त है ऊपर से? ऊपर देखा कलीलम मा तशकुरून, कलीलम हमने इतनी दौलत दी तुमको, इक़्तिदार दिया, इज़्ज़त दी, जी इज़्ज़त दी, और तुमने जो है उसका कोई लिहाज नहीं किया, शुक्रगुजार बंदे नहीं बने। अब देखिए यहाँ क्या है, ये किस्सा क्यों सुनाया गया? वो भी तकब्बुर में मुब्तला थे। हाँ, ये बात है, ये बात हो गई, आप समझ गए। हाँ, गोया कि तुम जो है, तुम साथी किसके बन गए? इब्लीस के। तुम गाली देते हो इब्लीस के, ये नहीं कहते तुम्हारा दोस्त है इब्लीस, तुम कहते तस्लीम तो नहीं करते हो इस तरह से, लेकिन हरकत तुम वही कर रहे हो। क्या कि तुम्हारा दोस्त कौन है? इब्लीस है। सब इब्लीसाना हरकतें तुम्हारी हो गई। वही गुरूर, वही घमंड, वही झूठी इज्जत, वही झूठी शेखी, वही तुम कर रहे हो। वही नाशुक्री। और ये वो कहा था उसने जाते जाते कि अल्लाह हम जो बहकाएंगे, और ये शुक्रगुजार तुम इनको नहीं पाओगे। तो अब ये देखिए आगे, फिर वहाँ तक पढ़ डालिए, अब आगे चलिए। फरमाया निकल जा यहाँ से जलील और ठुकराया हुआ, यकीन रख कि इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत इन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। चलते रहिए। और ऐ आदम, तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो, जहाँ जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर इस दरख्त के पास न फटकना, वरना जालिमों में से हो जाओ। चलिए। शैतान ने उनको बहकाया ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी इनके सामने खोल दे। इसने इनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस दरख्त से रोका है, इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, या तुम्हें हमेशगी की ज़िंदगी हासिल ना हो जाए। और इसने कसम खाकर इनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ। इस तरह धोखा देकर वो इन दोनों को रफ्ता रफ्ता अपने ढक पर ले आया। आखिरकार जब इन्होंने इस दरख्त का मज़ा चखा तो इनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए, और वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। तब इनके रब ने इन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से न रोका था और न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? बस वो भी पढ़ लीजिए, वो आयत भी। दोनों बोल उठे, ऐ रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर न फरमाया और रहम न किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। बस ये देखिए पूरा किस्सा आ गया जी। इसमें चंद बातें हैं जिन पर आप तवज्जो फरमाइए। पहली बात, आपको हम याद होगा कि हमने बताया था सूरह फातिहा का मरकज़ी मज़मून क्या है? शुक्र है। क्यों शुक्र बताया था? हमने कहा था कि शुक्र ही तमाम आमाल की जड़ है। फलाह, कामयाबी, कामरानी की जड़ क्या है? शुक्र है। शुक्र ही बीज है, वहीं से फिर ईमान इस्लाम की शाखें फूटती हैं। जैसा कि सूरह निसा में है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। ईमान का बाद में आया है, ठीक। यहाँ देखिए उसने कहा था, यहाँ उसने शैतान ने, कि मैं इसी पर हमला आवर हो जाऊँगा, कौन? जज्बे शुक्र को फना कर दूँगा। अब जज्बे शुक्र फना करने के लिए लगा रहा हज़रत आदम के साथ, हज़रत हव्वा के साथ लगा रहा।
कितने दिनों तक बकाया होगा ये कुरान मजीद देखिए नहीं बताता, खामोश है कुरान मजीद। लेकिन इमरान साहब एक मजलिस की बात नहीं है ये, कितने दिन लगाए, 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, 4 दिन लगाया, 1 महीना, 10 महीना, 10 साल लगाया, सबका इमरान है। बोलिए, कसरत मुराद है, कसरत, 1 दिन में नहीं हुआ ये। वो कोशिश करता रहा, क्या कोशिश करता रहा है इमरान साहब, क्या कोशिश करता रहा इब्लीस, किस पहलू से बहकाने की, कौन सा जज्बा, नाशुक्री, जज्बे शुक्र को फिना करने की उसने कोशिश की भरपूर। जब तक ये जज्बा मजबूत था हजरत आदम के अंदर, हव्वा के अंदर, मुकाबला करते रहे। लेकिन जब इस जज्बे को कमजोर कर लिया तो उसने बहका दिया, कामयाब हो गया। और हमने अर्ज किया कि 1 दिन में नहीं हुआ है, बार बार हुआ। कैसे मालूम बार बार हुआ इमरान भाई, कैसे मालूम बार बार किया उसने? वो तो एक ही ऐसा लगा अभी आपने पढ़ दिया अब एक ही लम्हे में सब हो गया। कैसे मालूम? आपके दोस्त हैं, पूछिए क्या नाम उनका, अब्दुल करीम साहब, बोलिए बार बार हुआ है ये, कैसे मालूम? देखिए हमारे डॉक्टर साहब ने बताया वसवसा का लफ्ज है, वसवसा, वाह कै मरतबा इस्तेमाल हुआ है भाई? 2 मरतबा। सीन कै मरतबा? 2 मरतबा। गोया बार बार ये हुआ है, क्योंकि हुरूफ की तकरार या अल्फाज की तकरार माने की तकरार में दलालत करती है। बार बार एक ही लफ्ज आ रहा है ना, इस वजह से ये मान रखता है कि ये सिलसिला दराज हुआ। बार बार उसने कहा, एक बात हुई, एक दलील है कि ये उसने बहकाने की भरपूर कोशिश की, बार बार कोशिश की। दूसरी बात ये, कासमा के माने क्या है? वक़ासमहुमा, उन दोनों से उसने कसमें खाई। तर्जुमा क्या किया है मौलवी साहब ने? इनसे कसमें खाई, कसमें खाई। मौलाना आमीन साहब तर्जुमा आप बताइए। उनके आगे कसम खाई, उसे कसम खा कर उसने तो मैं तुम्हारे बस उसने कसम खा का। और चलिए शेख ताहिर साहब, वो तो वही था। और चलिए भाई, उनके आगे कसम खाई, और चलिए, और दोनों के रूबरू कसम खाई के यकीन जानिए। बस ठीक है, दोनों को कसम खाई। तो कसम खाए में बस एक ही मतलब निकल रहा है ना, बोलिए एक नहीं। अच्छा शेख ताहिर साहब बोलिए, वो किस बाब से है कासमा? मफालत का खासा क्या है? मुशारका। क्या इस यानी शिरकत उनकी भी है, हजरत हव्वा आदम की, उन्होंने कसमें खाई क्या उसके साथ? नहीं। वो ये मुशारकत नहीं है खासा, तो फिर कौन सा खासा काम कर रहा है यहाँ? मुबालगा का बार बार कसमें खाई उसने। कसमें के माने बार बार कसमें खाएंगे, ये माना उसके खुद लफ्ज़ के अंदर, क्योंकि मुशारका नहीं है यहाँ। मुशारका हो ही नहीं, क्योंकि मुशारका का मतलब जो बता रहे हैं मौलाना, उसका मतलब ये है कि इब्लीस ने आदम हव्वा से कसमें खाई और आदम और हव्वा ने दोनों उससे कसमें खाई, तब न होगा। जैसे क़िताल, बाहम जंग करना, तो मुकासमा के गोया के कसम खाने में दोनों शरीक हैं। ये भी दो तरफा मामला नहीं है ये खासा काम नहीं कर। दूसरा खासा उसका है मुबालगा का मतलब क्या? खूब कसमें खाई, ढप पर नहीं आ रहे थे। फरमाने इलाही उनको याद था, लेकिन जब तक फरमाने इलाही याद था वो फंदे में नहीं फंसे। लेकिन जब फरमाने इलाही फरामोश हो गया, सूरह ताहा में फनसिया, हाँ भूल गए, तब कामयाब हो गया। एक बात हुई, ये फरमाने इलाही भूले कैसे? अब देखिए फंदा उसका कैसा है। फंदा ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, अल्लाह ने कहा था ना, कहा कि अल्लाह ने क्यों रोका जानते हो? मा नहाकुम रब्बुकुम अन हाज़िहि शजरा, तुमको ऐसे रोका है, क्यों रोका जानते हो तुम? उन्होंने कहा, जब बार बार कहा कि नहीं आते तुम्हारे फंदे में नहीं आते भाई, अल्लाह ने रोका। खा रहे तुम्हें नहीं मालूम क्यों रोका है? इस वजह से रोका है, खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे, मासूम बन जाओगे और तुम हमेशा रहोगे इस दुनिया में। देखिए फरिश्ता बनना कौन नहीं चाहता या भाई? हर आदमी खाए फरिश्ता बन जाए, नेक बन जाए, मासूम बन जाए। यही कहा था लाक़ुदन्न लहुम सिरात, का तेरे सिरात मुस्तकीम बैठेंगे हम।
बेग साहब सिरात मुस्तकीम बैठ कर, ये नहीं कि वो सिरात ज़लाल में बैठेंगे, ना ना ना, वो फंदा नहीं, वो फंस नहीं सकते थे। क्या कहा? अरे समझा भी नहीं तुमने। अरे इस वजह से तुम हम फरिश्ते बन, कोई गुनाह नहीं होगा तुमसे भाई, इस वजह से रोक दिया इससे। और क्या? वह मुल्किल ला यबला, और ऐसा इक़दार हासिल हो जाएगा जो कभी फिनान, हमेशा तुम दुनिया में रहोगे। अब ये है देखिए लालच आ गया, ये इंसान की फितरी चीज। शक पैदा किया। और देखिए एक चीज है शक किस अंदाज से, यूं ही डायरेक्ट देखिए कितनी उससे अंदर हिकमत देखिए उसकी। अरे भाई भी एक वो पहलू नहीं समझ रहे हैं, उसकी जो हिकमत क्या है कि तुम फरिश्ते बन जाओगे, यानी मासूम बन जाओगे। इकबाल कितनी उम्दा बात कहता है रियाज साहब, कितनी बात कहता, मस्त रखियो जिक्रो, मस्त रखियो जिक्रो फिक्र सुबहगाही में से, मस्त रखियो जिक्रो, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, ही दिन रात पढ़ते रहे। बोलिए कितना अच्छा काम है ये, सिरात मुस्तकीम नहीं, यही काम ही रह गया बस। अब बताए अगर आदमी दुनिया को छोड़ दे शैतान के लिए, इसी में रह जाए, बोलिए दीनदार हो जाए। दीनदार है साहब, यही दीनदार है, कितने मुत्तकी हैं, कितने परहेजगार हैं। उसी कहा इकबाल ने, मस्त रखियो जिक्र फिक्रे सुबहगाही में से, पुख्ता तर कर दे मिजाज खानकाही में से। तो ये चीज है, वो शैतान वैसे वो जो है मैखाने में बैठ कर, क्या मस्जिद बैठ कर बकाएगा, मैखाने में शराबियों के पास जाएगा, वो क्या मिलेगा? वो तो शराबियों से काम कर ही रहे हैं, बोलिए क्या मिलेगा उसको? क्यों जाएगा वहाँ? भाई उसके काम हो ही रहा है भाई, क्यों जाएगा? जहाँ ईमान होगा मस्जिदों में बैठेगा, मस्जिद के रास्ते में बैठेगा जी, वहाँ जो फलसफा बयान करेगा, इस तरह से बहकाएगा। ये हुआ, ये इस तरह से उसने बहकाया है। इसी तरह जो है जी। चलिए अब दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने खा लिया तो क्या बदत लहुमा अतुहुमा, क्या तर्जमा है? इन्होंने इस दरख्त का मजा चखा तो इनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गई। सवात का तर्जमा क्या किया है? सवात का तर्जमा सतर, सतर से मुराद शर्मगाह, ठीक है। देखिए ये सतर के लोग तर्जमा कर रहे हैं, मौलाना मौदूदी साहब तर्जमा होगा, उनका भी मेरा खत तर्जमा वैसे ही सवात। देखिए आप तर्जमा पढ़िए, मुस्तफ़ा साहब तर्जमा पढ़िए, आप पढ़िए भाई जो है इलियास साहब। दोनों का पर्दा बदन, दोनों का पर्दे का बदन एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गया, दोनों। चलिए, और उनकी शर्म की जगह इनके सामने बेपर्दा हो गई। चलिए ठीक है। गोया कि सवात का तर्जमा क्या हो रहा है इमरान साहब? शर्मगाह, यही ना, शर्म की जगह शर्मगाह, ठीक है। ये तर्जमा गलत नहीं है, लेकिन सवात के माने अरबी में क्या आते हैं? अरबी के लिहाज से बताइए। नहीं, बुराई नहीं, बुराई का तर्जमा नहीं है। सवात के माने अरबी में आते हैं किसी मुल्क का सरहदी हिस्सा जो बड़ा हसास होता है, किसी मुल्क का वो सरहदी हिस्सा जो हसास हो, जहाँ से दुश्मन आसानी के साथ हमलावर हो जाए। समझा कि नहीं? किसी भी मुल्क का आप देखेंगे, अरबी ज़ुबान की जो लुगात हैं देखेंगे, तो किसी मुल्क का वो सरहदी हिस्सा जहाँ से दुश्मन आसानी से हमलावर हो जाए। जैसे यहाँ जो है जो हिंदुस्तान है, मिसाल दे रहा हूँ, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा सरहदी हिस्सा हसास कौन सा है? कश्मीर या लद्दाख या तिब्बत। बोलिए, जो चाइना के जद में है, हसास है कि नहीं मसला? बड़ा हसास मसला है वो, तो उसको सवातुल हिंद कहेंगे। ठीक ही शर्मगाह पे उसका इतलाक क्यों होता है? इंसानी जिस्म में वो निहायत हसास इलाका है, दुश्मन ये शैतान है, उसके ज़रिए आसानी के साथ इंसान पर हमलावर हो जाता है, इससे उसको सवात बोलते हैं। इसी बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हदीस है, दो चीज़ों को तुम ज़मानत दे दो हम जन्नत की ज़मानत दे देंगे जी, ज़ुबान और शर्मगाह, क्योंकि हसास है, हसास है, हसास। दुश्मन जो है हमला कर देता है, इस बुनियाद पर जो है। और भी आप देखेंगे, इस पर गौर करेंगे। अब जब अल्लाह ताला ने साफ साफ खोल कर बयान किया कि हमने तुमको रोका नहीं था,
वक़ुल लकुम, कहा था शैतान तुम्हारा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन का मतलब वाज़ेह दुश्मन। भरी मजलिस में ऐलान किया हमको बहकाएंगे। भाई दुश्मन एक होता है चुप्पे चुप्पे अंदर अंदर करता है, अंदर वाला दुश्मन का है ना 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 ना, भरी मजलिस में कहा था कि इनको बहका कर दम देंगे, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नहीं जाएंगे, बहकाएंगे हम। इतना बड़ा दुश्मन था, कैसे तुम उसके बहकावे में आ गए? तब उनको एहसास हुआ, क्या कहा? रब्बना अनफुसना व इल्लम तगफिर व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तुम्हें बख्श हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा, रहम नहीं फरमाएगा, तो हम मुकम्मल नाकाम हो जाएंगे। ये हज़रत आदम का ये किस्सा क्यों पेश किया जा रहा है इनके सामने? ताकि ये लोग भी तौबा कर लें। तुम्हारे सामने दो नमूने आ गए, एक आदम का, हव्वा का, और एक इब्लीस का। इब्लीस जमा रहा और ये आदम और हव्वा दोनों जमे नहीं रहे। एहसास जब हुआ, एहसास से गुनाह, वो तो हमने हद तोड़ दी, अल्लाह के हुक्म नाफरमाने की, झुक गए, वो कामयाब हुए। ऊपर देखा फमन सक़लत मवाज़ीन फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून व मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीन फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। दोनों नमूने आ गए, इब्लीस हुमुल ख़ासिरून, और ये क्या है? ये फलाह, कामयाब होने वाले दोनों नमूने आ गए। एक बात हुई। दूसरी बात ये फ़दल्लाहु बिग़ुरूर, कैसे बहकाया है? फ़रेब दिया, फ़रेब नफ्स दिया। फ़रेब ही था कि तुमको इस वजह से अल्लाह ने रोका कि तुम फरिश्ते बन जाओगे। फरिश्ता आदमी बड़ा समझता है कि अल्लाह वाला बन जाए, जी फरिश्ता बन जाए, है ना, ये बहका दिया उसने। अब चलिए गुरूर माने धोखा, फ़रेब। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किसने तुमको फ़रेब में मुब्तला कर दिया? गरूर माने दुनिया गरूर करते हैं, बताया गरूर, फ़रेब का सौदा। चलिए, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती को कहीं भी गुनाह नहीं करार दिया गया। गुनाह क्या मतलब? तो जैसा अलग अलग लफ्ज़ होते हैं, खता है, निसियान है, इसम। हजरत आदम की गलती का फ़ग़वा, क्या कहा? फ़ग़वा आसा रब्बुहु फ़ग़वा। आप क्या समझते हैं? उससे बड़ी चीज़ है आसा। आसा इस्यान, किसी बड़े की नाफरमानी करना, और फिर गवायत है, गवा माने भटक गए। अलबत्ता आप ये समझिए, ये बता रहा है भटके, मगर जब एहसास हुआ फौरन तौबा कर लिया, पलट आए। अब आगे चलिए।